Hello students, our topic is collision. There are the three types of collision: elastic collision, inelastic collision, and perfectly inelastic collision. And we divide the collision in four lectures, students. First, elastic collision, two lecture, lecture 1 theory, lecture 2 MCQ, then inelastic collision, lecture 3 theory plus MCQ, perfect inelastic collision, theory plus MCQ. इससे आपका collision बहुत अच्छे से हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो start with the first elastic collision, lecture number 1 theory. Chalo, so what is the meaning by elastic collision, students? In the case of elastic collision, see, in any collision there is external force 0. So in any collision, either it is elastic collision, either it is inelastic collision, either it is perfect inelastic collision. In any collision, external force is 0. F is the external force. F is external force. So external force is 0. It means linear momentum is conserved. Now what is the meaning by linear momentum? Before and after collision, momentum remains same. Initial momentum means before collision, final momentum means after collision, momentum remains same. So momentum is conserved. And if it is a special case, if it is a elastic collision, then kinetic energy is also conserved. If it is elastic collision, then kinetic energy is also conserved. Means initial kinetic energy, initial means before collision, final means after collision, kinetic energy remain same. Okay, chalo. Now next, suppose now head-on elastic collision. Head-on elastic collision, or it is also known as collision in a straight line. Chalo, suppose before the collision, m1 is moving with speed u1, m2 is moving with the speed u2. Before collision, m1 is moving with the speed u1, m2 is moving with the speed u2. After collision, m1 is moving with the speed v1, m2 is moving with the speed v2. See students, what is the meaning by head-on collision? Before the collision, they are moving in a x-axis. After the collision, they are also moving along x-axis. So line of action is same. Then it is known as head-on collision. Head-on elastic collision. Head-on collision means क्या होता है? Head-on collision means line of action is same. Before the collision, they are moving along the x-axis. After the collision, again they are moving along x-axis. So this is known as head-on collision. And elastic collision means what? Kinetic energy is conserved. So head-on is clear. Head-on collision means what? If suppose after the collision direction is changed, m1 is moving is here, m2 is moving in that direction, then it is not a head-on collision. It is known as collision in a two direction. Okay, वो भी हम आगे देखेंगे. चलो, तो लेकिन in the case of head-on collision, line of action is same. Chalo, now here two types of conservation. Momentum is conserved and kinetic energy is also conserved. Collision is head-on elastic collision. So the momentum conserved and kinetic energy is also conserved. Why momentum is conserved? Because there is no external force in collision. So momentum conserved, and it is the elastic collision, students. So kinetic energy is also conserved. Okay, now what is the initial momentum? m1 u1 plus m2 u2. चलो स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ऑपोजिट में जा रहे होते, m2 ऑपोजिट में जा रहा होता तो हम यहाँ पे माइनस लेने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमने प्लस लिया है, तो ये इनिशियल मोमेंटम है. व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? m1 v1 प्लस m2 v2. चलो, ये है इनिशियल मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2. ये है फाइनल मोमेंटम m1 v1 plus m2 v2. Now what is the initial kinetic energy?
What is the initial kinetic energy? Half m1 v1 square half m2 v2 square. ये है initial kinetic energy. What is the initial speed? u1. तो half m1 u1 square half m2 u2 square. What is the final kinetic energy? Half m1 v1 square half m2 v2 square. चलो ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2. मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व. चलो नेक्स्ट वन. चलो वापस वही हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हमारा वही टॉपिक रहेगा अभी भी, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. चलो वापस वही हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. चलो before collision m1 is moving with the speed u1, m2 is moving with the speed u2. After collision m1 is moving with the speed v1, m2 is moving with the speed v2. now हमें फाइंड करना है आफ्टर द कोलिजन ये m1 कितना होगा. आफ्टर द कोलिजन हमें ये m1 v1 फाइंड करना है और v2 फाइंड करना है. वैसे हमें आफ्टर कोलिजन की स्पीड फाइंड करनी है. सपोज आपको u1 u2 दिया है, आपको आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम. सो v1 और v2 फाइंड करना है, लेकिन कौन सा कोलिजन? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन है, v1 और v2 फाइंड करना है. देखो कैसे बनाओगे फॉर्मूला. आप क्या फाइंड कर रहे हो? v1 किसकी स्पीड है? m1 की, तो m1 से स्टार्ट करो. m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पे v1 तो यहाँ पे u1, और यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट किया, तो अभी यहाँ पे 2 से स्टार्ट करो. 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, चलो अगेन रिपीट. we want to find what? speed of v1 is the what? speed of m1 after collision. तो ये 1 है, सो स्टार्ट 1 से करो. m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पे 1 तो u1. अभी यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था, तो अभी 2 की बारी. 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. चलो बना दो फॉर्मूला, v2 की बना दो. अभी v2 की फॉर्मूला बनाओ अपने आप. क्या आएगा? v2 किसकी स्पीड है? v2 इज द स्पीड ऑफ m2 आफ्टर द कोलिजन. तो यहाँ पे 2 है, तो 2 आएगा. m2 माइनस m1, न्यूमरेटर में माइनस तो डिनोमिनेटर में प्लस. यहाँ पे v2 तो यहाँ पे u2. अभी ये m2 से स्टार्ट किया, तो m1 स्टार्ट करो. 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस, ये है थर्ड, ये है फोर्थ. चलो ये थर्ड एंड फोर्थ क्या है? स्पीड ऑफ v1 एंड v2 आफ्टर द. ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, वेरी यूजफुल फॉर्मूला फॉर द इलास्टिक कोलिजन. रिमेंबर इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला. v1 एंड v2 स्पीड ऑफ m1 एंड m2 आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन. ओके चलो, सो आसान है. इफ इट इज अ स्पीड ऑफ m1, if it is a speed of m1, then start from the m1. v1 is the speed of m1, तो m1 minus m2, न्यूमरेटर minus डिनोमिनेटर प्लस. v1 u1 और u2 क्या है? u1 और u2 क्या है? इनिशियल स्पीड बिफोर द कोलिजन. फिर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करो. सेम ये v2 है तो 2 से स्टार्ट करो. यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 1. चलो नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट है हमारा वापस लॉस ऑफ फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय प्रोजेक्टाइल. चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे आपसे. फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय प्रोजेक्टाइल. चलो नाउ सी बिफोर द कोलिजन, ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल है. प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोजेक्टाइल? m1, एंड वो कहाँ पे है? कितनी स्पीड से मूव रहा है? u1. प्रोजेक्टाइल m1 इज अ प्रोजेक्टाइल. व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल? u1. वो टारगेट, जो टारगेट है वो रेस्ट में है, वो उससे क्या कर रहा है? कोलाइड. तो सी व्हाट, कौन काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा स्टूडेंट्स? ये जो टारगेट है वो तो रेस्ट में है, उसके पास तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, वो क्या लॉस करेगा? ये जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी. क्यों? क्योंकि आफ्टर द कोलिजन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी. सपोज उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1
u1 स्क्वायर, लेकिन आफ्टर द कोलिजन वो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। आप तो बोल रहे थे सर कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, लॉस कौन करेगा, ये m1 टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल बिफोर द कोलिजन m1 की काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल, ठीक है। चलो, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। तो आफ्टर द कोलिजन स्टूडेंट्स, आफ्टर कोलिजन सपोज ये प्रोजेक्टाइल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज करके 100, इसने 25 जूल काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी। इन बिफोर द कोलिजन 100 जूल थी, आफ्टर द कोलिजन 25 जूल एनर्जी लूज। तो ये जो 25 वो कहां गई, ये जो 25 है ये इसको मिल जाएगी। प्रोजेक्टाइल m1 ने जितनी भी काइनेटिक एनर्जी लूज की 100 जूल से 75, कितनी लूज की, 25, वो 25 जूल एनर्जी किसको मिल जाएगी, टारगेट को। सो टारगेट भी मूव हो जाएगा विद द स्पीड v2। टोटल एनर्जी देखो कितनी थी, टोटल 100, यहां पर भी टोटल करो कितनी है 100, वो कंजर्व रहेगा स्टूडेंट्स। क्यों कंजर्व रहेगा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज द इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है। तो देखो अगेन ये देखो, पहले प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, टारगेट रेस्ट में था तो 0 था, टोटल 100 है। आफ्टर द कोलिजन इसने 25 जूल एनर्जी लॉस की, तो 100 से वो गया 75, 25 जूल लूज की, वो किसको मिल गया, टारगेट को। वापस टोटल मिला तो 100 होगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, ये जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी एनर्जी लॉस करेगा, और जितनी भी एनर्जी लॉस करेगा वो किसको मिलेगा, टारगेट को। तो हम एक और भी यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखो चलो, तो जितनी भी एनर्जी लॉस करेगा, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय प्रोजेक्टाइल, और उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी कौन रिसीव करेगा, रिसीव बाय टारगेट। ठीक है, जितनी काइनेटिक एनर्जी ये प्रोजेक्टाइल लूज करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाएगी, टारगेट को। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी इसके पास तो कुछ है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, प्रोजेक्टाइल की। क्या होगा, फ्रैक्शनल लॉस, फॉर्मूला डेल्टा के बाई के। डेल्टा के होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन डेल्टा के बाई के मींस फ्रैक्शनल लॉस। ठीक है, डेल्टा के मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के बाई के को आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शनल लॉस इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। चलो ठीक है, डेल्टा के मींस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस किसकी है, काइनेटिक एनर्जी कौन लूज कर रहा है, प्रोजेक्टाइल। इसके पास तो कुछ हुई नहीं, टारगेट के पास प्रोजेक्टाइल की फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये के भी किसकी है, प्रोजेक्टाइल की। तो है फॉर्मूला यहाँ पे 4m1 m2 बाई, चलो क्लियर विद द कंसेप्ट। टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज यहाँ पे क्या रहेगा, कंजर्व, कांस्टेंट, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। जितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल ने लूज की उतनी काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाएगी, टारगेट को। लेकिन कोलिजन है तो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, जितनी भी लॉस हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी वो कौन रिसीव करेगा, टारगेट, ताकि टोटल एनर्जी क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चलो नाउ द नेक्स्ट इज coefficient of restitution. It is again very important topic. यहाँ पे उसका सिंबल होता है E, coefficient of restitution. क्या होता है coefficient of restitution? It is a ratio of relative velocity. It is a ratio of relative velocity after and बिफोर कोलिजन। ये जनरल टॉपिक है स्टूडेंट, सब टाइप के कोलिजन में आएगा, इलास्टिक में भी, इनइलास्टिक में भी, और परफेक्ट लीनियर में भी। जनरल डेफिनेशन है रेशियो ऑफ
relative velocity after and before collision. चलो, तो before the collision m1 is moving with the speed u1, m2 is moving with the speed u2. After the collision m1 is moving with the speed v1, m2 is moving with the speed v2. चलो, तो what is the relative velocity? क्योंकि क्या है, coefficient of restitution, relative velocity before, relative velocity after and before the collision. चलो, before the collision relative velocity क्या होगा, relative velocity माइनस लेंगे. चलो, तो इनिशियल में किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कोलिजन हो रहा है तो u1 ज्यादा होगा, तो बिफोर द कोलिजन u1 माइनस u2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी. आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, v2 माइनस. आफ्टर द कोलिजन v2 बढ़ जाएगा. चलो, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, v2 माइनस v1, u1 माइनस u. और ये वेलोसिटी का ही रेशियो है, तो मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिटलेस हो जाएगा, नो यूनिट. चलो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. चलो, नेक्स्ट है फॉर इलास्टिक कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. फॉर इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. क्यों सर, क्यों 1? चलो बता देते हैं. चलो, तो मोमेंटम कंजर्व था, तुमने क्या लिखा था, मोमेंटम कंजर्व था तो m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2. तो m1 कॉमन ले लो, यहां से m1 कॉमन, तो u1 माइनस v1. सेम यहां पे से m2 कॉमन, तो v2 माइनस u2. चलो, फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या था, कंजर्व. तो क्या आया था इक्वेशन, याद करो, आपने लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो हाफ m1 u1 स्क्वायर. क्यों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, इलास्टिक कोलिजन. चलो, तो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. अभी क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन, हाफ m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. चलो, ये क्या हो गया, हाफ कैंसल. चलो, तो हाफ कैंसल क्या आएगा, m1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1. सेम यहाँ पर भी v2 माइनस u2, v2 प्लस u2. सर, ये आप क्या कर रहे हो, मैं डिराइव कर रहा हूँ कि इलास्टिक कोलिजन 1 होता है. ठीक है. चलो, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो. इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2. चलो, क्या आएगा, कौन सा है इक्वेशन, ये 1 और ये रहा 2. दोनों को डिवाइड करो, m1 u1, m1 कैंसल, u1 माइनस v1 कैंसल, कट हो जाएगा. तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बचा, u1 प्लस v1, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल. तो क्या बचा, u1 प्लस v1. सेम यहाँ पे m2 कैंसल, रेशियो ले लोगे तो कैंसल हो जाएगा, तो v2 प्लस u2. देखो, हो गया प्रूफ. u1 माइनस u2, v2 माइनस v1. क्या था E की फॉर्मूला, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. क्या हो गया, 1. डिवाइड में जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही होता है E. तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर द इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1. चलो, ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला लिस्ट फॉर द इलास्टिक कोलिजन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट फॉर द इलास्टिक कोलिजन, ये पूरा फॉर्मूला है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे PYQ, इसका रिलेटेड NCERT question plus PYQ. Okay, so for more videos please share and subscribe my YouTube channel. Thank you students.